very good afternoon. I'm Dr. Monica Singh, and I resume my session which I had taken yesterday on Social Work Practicum, which is MSW 005. So yesterday I had told you about the fieldwork, the orientation visits, the concurrent visits, then what are the expectations of a student from a student of social work in the field, and what is a concurrent fieldwork, how to go about it, what are the do's and don'ts, and how to gain experience and how to be efficient while doing your fieldwork. So now a little bit about when we are doing fieldwork or when we are attached to an organization. We also hold different kind of meetings in an organization, which is a part as a social work student or a social work professional once you do your masters or you do your bachelor's and you are attached to an organization. Now, what is the purpose of a meeting? The purpose of a meeting in an organization as a social work student or a social worker is, the first purpose is to build a rapport with the people. Then second is to interact with the people about the issues and ideas, because only then will you know that what are the underlying issues, what are the underlying problems and how to deal with it. Then to understand the current status of the people, what is the current status of the people. Then to find out the key informants and resources which are available in the community. Then to build a team for further planning and action to be taken based on the needs of the people. Then you also talk about finding the local leaderships. Then to discuss the purpose and role of community worker and his or her organization. And lastly, to discuss the role of the community, that whenever you are undertaking any kind of task, whether it is in a community and if you are doing group work and you're holding a meeting, so you have to understand that what is the purpose or what is the role of the community, which is of the most important aspect of holding a meeting, and to understand the problem and to undertake a task. Now, what types of meetings are there? There are generally two types of meetings. One is an open meeting and one is a closed meeting. Open meeting is a one which can be attended by any person, and public meetings on the issues such as right to information, discussion on annual budget of India, any health awareness lectures you have to plan, any kind of activity which you have to plan. So that's an open meeting. And for a closed meeting, very few people are invited and anybody cannot walk in this kind of meeting, and in this the members have to participate in it. And meetings of such a kind could be monthly review meetings, distribution of supposing medicines or distribution of resource material. So these are the two kinds of meeting. Now, as a social worker, you are placed in an organization. आप एक organization में काम कर रहे हैं, तो आपने मीटिंग कैसे प्लान करनी है. सो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने मीटिंग करनी है, लेकिन मीटिंग को प्लान कैसे करना है. सबसे पहले आपको जो मीटिंग कंडक्ट करना है वो एक आर्ट ही नहीं है, वो एक कला ही नहीं है, वो एक स्किल भी है. और जो सोशल वर्कर है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो मीटिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ही शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मीटिंग, एंड अकॉर्डिंगली द मीटिंग शुड बी प्लान. एंड अगर आपने मीटिंग अच्छे से प्लान की है, उस मीटिंग के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन है जो उस मीटिंग के पार्ट हैं, सो उससे क्या होगा कि आपको पार्टिसिपेशन मिलेगी उस मीटिंग में. देन जो अगर आप कम्युनिटी में मीटिंग कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि उसमें जो कम्युनिटी के लोग हैं जिनका ओपिनियन मैटर करता है, दे आर देयर, एज वेल एज जो अगर आप रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, हर मंथ करते हैं मीटिंग, तो उसके बारे में भी टाइमली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पहले से. एंड जो हाउ टू प्लान अ मीटिंग, व्हाट आर द पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग अ मीटिंग. फर्स्ट जो पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मेन इशू टू बी एड्रेस्ड इन द मीटिंग, कि आपकी मीटिंग का जो है वो मेन इशू क्या है. व्हाट इज़ द मेन इशू विच विल बी एड्रेस्ड इन द मीटिंग. सेकेंड, उससे कौन इफ़ेक्ट होता है, हु इज़ इफेक्टेड बाय इट. देन थर्डली, जो थर्ड पॉइंट है व्हेन यू प्लान अ मीटिंग इज़, आर पीपल अवेयर ऑफ इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स, कि लोगों को उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता है कि नहीं. Then is there any organization which is working on the same issue.
अगर आप एक मीटिंग प्लान कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए हम मीटिंग प्लान कर रहे हैं, अगर आपने कोई प्रोग्राम प्लान करना है तो आपको ये पहले जानकारी होनी चाहिए कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो उसी चीज़ पे काम कर रही है, उसी प्रॉब्लम पे काम कर रही है, तो वो डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट इज, हैज़ एनीवन इंडिविजुअली और इन एनी ग्रुप टेकन एनी एक्शन, कि अगर किसी ने इसी प्रॉब्लम जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, जो कोई प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, उस पे पहले किसी ने, कोई इंडिविजुअल ने, किसी एक इंसान ने या किसी ग्रुप ने कोई एक्शन लिया है, और अगर लिया है तो व्हाट इज़ दैट एक्शन एंड उसका रिजल्ट क्या था, एंड अगर नहीं, इफ़ नो, देन व्हाई डिड द पीपल नॉट टेक एनी एक्शन, तो क्यों एक्शन नहीं लिया गया। देन हम बात करते हैं, आर देयर एनी रिसोर्सेज लोकली अवेलेबल टू एड्रेस दीज इश्यूज़, कि जो हमने इशू एड्रेस करनी है उसके लिए कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लोकली अवेलेबल हैं, और देन डज इट फिट विद द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वेयर द कम्युनिटी वर्कर और द working, then does it come to in the purview of the organization for which the community worker or the social worker is working। जो आपने काम सोचा है, जो आपने ऑब्जेक्टिव सोचे हैं, जो आपने तरीका सोचा है, उसके दायरे में क्या वो आता है जो कम्युनिटी वर्कर ने काम करना है। देन व्हाट काइंड ऑफ हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिटी वर्कर कैन ऑफर। जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कम्युनिटी वर्कर किस तरह की हेल्प कर सकता है। देन एक्शन जो है वो सोशल वर्कर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट सोशल वर्कर क्या एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम द पीपल, जो लोग हैं जिनके साथ आपने काम करना है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे या क्या एक्शन उनका होगा। देन व्हाट मेथड्स आर गोइंग टू बी यूज टू एड्रेस द इश्यूज़, आप कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। जैसे अगर आप कोई फर्स्ट सेशन लेंगे तो उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया सेशन, देन आप ऑडियो विजुअल्स, किसी ऑडियो विजुअल्स के थ्रू एड्रेस करेंगे, कोई चार्ट्स बनाए हुए हैं या आपके पास कोई डेटा है जिसके बेस पे आप आगे काम करेंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा जिसको कहते हैं। देन रेफरेंस ऑफ लॉज, कोई ऐसे लॉज या कानून बने हुए हैं जिसको आप कोट कर सकते हैं। So as a social worker in a field you have to hold meetings. So I have told you कि purpose of meetings क्या है, किस तरह की meetings होती हैं, किस types की होती हैं, open and closed, and how to plan a meeting, कि हम meeting को किस तरह से plan करते हैं। Now अगर आपने purpose आपको पता लग गया, आपको type of meeting पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि आपने plan कैसे करनी है, अब उस meeting के success के लिए how to hold a successful meeting, कि meeting successful हो उसके लिए हमने जो सोशल वर्कर है उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, विच आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। फर्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ अ कन्वीनियंट टाइम एंड वेन्यू फॉर द मीटिंग, कि ऐसा टाइम मीटिंग का चुनो जो सबको सूट करता है, और ऐसी जगह चुनो जहाँ लोग पहुँच सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड वेन्यू फॉर द मीटिंग। देन जो पार्टिसिपेंट की सिलेक्शन है दैट शुड बी डन विद लॉट ऑफ केयर। आपको जो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे आपने वो सिलेक्ट करने हैं तो उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और उनकी सिलेक्शन बहुत ध्यान से करनी होती है। देन टाइमली इंटीमेशन और इन्विटेशन ऑफ द मीटिंग, लोगों को टाइमली समय से पहले, मीटिंग से पहले, ये नहीं कि आज मीटिंग है तो 1 घंटा पहले उनको नोटिस मिल रहा है या उनको पता लग रहा है कि आपने मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट फ्री, everybody is not having time to for just or sitting for this meeting only, तो आपने पहले ही लोगों को इन्फॉर्म करना है। और एक और चीज़ है कि अगर आपने किसी को मीटिंग पे बुलाना है, सो देयर समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्टिंग एंड डिग्निटी ऑफ दैट इंडिविजुअल, जो हमने मेंटेन करके रखनी है। अगर आप उसको लास्ट मोमेंट पे बुलाएंगे तो उसको लगेगा कि आई एम जस्ट बीइंग कॉल्ड और देयर इज़ नो, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। So these things also matter for the success of the meeting or the success of any program. So the social worker has to be very careful about these things. अच्छा, then preparation of an agenda. प्रेपरेशन ऑफ एन एजेंडा मीन्स आपने मीटिंग जो करनी है उसका आज मीटिंग का एजेंडा क्या है। अगर आपने कल एक मीटिंग प्लान करी है तो आप उस पे नीचे लिखेंगे एजेंडा, और एजेंडा में आप एजेंडा आइटम्स डालेंगे 1 2 3 कि क्या क्या आपने डिस्कस करना है, सो दैट पीपल कम प्रिपेयर्ड, सो दैट आप प्रिपेयर्ड हैं कि आपने क्या डिस्कस करना है, आपको उसके बारे में जानकारी हो
और वो क्या प्रायोरिटी नीड है डिस्कस करने के लिए एट दिस टाइम. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन सर्कुलेशन ऑफ रिसोर्स मटेरियल और हैंडआउट्स इन द मीटिंग इफ़ रिक्वायर्ड. कि अगर आपने कोई रिसोर्स मटेरियल तैयार किया हुआ है तो उसके सर्कुलेशन के लिए आपने पहले ही तैयार करके रखना है. ये नहीं कि मीटिंग स्टार्ट हो गई उस टाइम आप किसी को कह रहे हैं कि प्रिंट आउट लेके आओ या फोटो कॉपी करके लाओ, तो इतना टाइम नहीं होता. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट मीटिंग शुड बी ब्रीफ, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, एंड पीपल शुड बी इंटरेस्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड टू अटेंड द मीटिंग. अगर मीटिंग इतनी लंबी खींचेगी तो उससे क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा. Now we have done meetings. Now we know that I come back to the social work practicum part of it. This was a part which was expected. जो meetings hold करना, this was very important. And now we come to expectations of the student from the social work program. What are the expectations of a student from the social work program? जो एक स्टूडेंट है जब वो एक सोशल वर्क का सब्जेक्ट लेता है, सबसे पहले मैं उसको ये कहती हूँ, या मेरा ये मानना है कि सोशल वर्क में वही स्टूडेंट आए जिसको एक पैशन हो, जिसको इंटरेस्ट हो. जस्ट एक सोशल वर्क का ठप्पा लगाना है, एक डिग्री लेनी है और आपको कोई फील्ड वर्क में इंटरेस्ट नहीं है, आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, you will never be a successful social worker. You will never be able to do anything. This is not a subject which is only theoretical. This is theory as well as practical, and you have to have those skills. You have to have apply those techniques. You have to use the principles which you learn. एंड स्किल्स ये नहीं है कि आपने स्किल्स पढ़े और यूज़ कर दिए. स्किल्स एक इनबॉर्न कला भी है. एक अच्छा सोशल वर्कर बनने के लिए आपके अंदर डिफरेंट स्किल्स होने चाहिए. किसी में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, किसी में डॉक्यूमेंटेशन के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कोई नेटवर्किंग में बहुत अच्छा है, किसी के अंदर एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड है, सो वो बहुत अच्छे से काम करता है. सो सम स्किल और द अदर इज़ रिक्वायर्ड. हर एक के अंदर, मेरे में भी हैं, कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं. हर एक इंसान में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं. तो उससे ये नहीं है कि अगर किसी के अंदर वीकनेसेस ज़्यादा है और स्ट्रेंथ्स कम है तो वो अच्छा सोशल वर्कर नहीं बन सकता. ऐसा नहीं है. ही कैन वर्क ऑन हिज वीकनेसेस एंड इम्प्रूव ऑन देम एंड ट्राई टू इरेडिकेट देम और ट्राई टू फिनिश देम एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट कि किस तरह से मैं इनको कमियों को ख़त्म कर सकता हूँ या गैप्स को फिल कर सकता हूँ. देन जो एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम द सोशल वर्क प्रोग्राम इज़ कंप्लीशन ऑफ द प्रैक्टिकम. जो प्रैक्टिकम का आपका जो जर्नल है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी समझ होनी चाहिए कि आपने किस तरह से करना है, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, आपका क्या रोल है. और आपने एक ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, ओरिएंटेशन विजिट्स आपने करनी है. देन आपने कंकरेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन और सारा कुछ, लेटर और सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन से लेके इग्नू के ऑफिस से लेके सब कुछ स्टैम्प्ड एंड साइन होना चाहिए, सो दैट लीगली एंड ऑथेंटिक, इन एन ऑथेंटिक वे यू हैव जॉइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट कि दिस स्टूडेंट इज़ अटैच टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो जो फील्ड वर्क सुपरवाइज़र है या जो स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, इवन इन डिस्टेंस एजुकेशन, अ रिकॉर्ड इज़ मेंटेन्ड दैट दिस स्टूडेंट हैज़ जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस डेट, और इसका फील्ड वर्क इस डेट से इस डेट तक चलेगा और 45 डेज़ में कंप्लीट होगा. And the student is given instructions and a basic knowledge about what is expected out of him. उसने फील्ड वर्क में क्या करना है, कैसे एजेंसी में काम करना है, कितने घंटे लगाने हैं, किस किस तरह से जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना है. देन जो वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, जो जब एजेंसी से हो जाती है उसका फॉर्मल वेलकम होता है एजेंसी में. तो द स्टूडेंट इज़ फॉर्मली एक्सेप्टेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. एंड जो स्टूडेंट है उसको हमेशा मैं कहती हूँ कि व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, yesterday also I said, try to learn, try to understand the organization in totality, don't rush things, and पहले समझो, सीखो, सब जानकारी लो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. एंड अगर आप फील्ड वर्क एक NGO में कर रहे हैं तो NGOs क्या है, NGOs are characterized by the following attributes, which is they are non-profit organization, autonomy from the state is there, and its direct contact is there with the
direct connection or direct contact is there with the government. For the NGO might be working in some kind of government projects which are there. The government might have given some projects to the NGO to work in a community or undertake some kind of programs. So the social work student gets attached to that organization or that NGO. And जो फंक्शन एनजीओ का है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, देन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज लाइक चाइल्ड केयर, काउंसलिंग, लीगल एड, then mobilizing people to demand services and protest against injustice, then advocacy for unrepresented people, then research. NGO also conducts various kind of research which can be used for designing policies or on those basis जो empirical हम primary database studies करते हैं रिसर्च के माध्यम से, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है विच यू कैन यूटिलाइज टू इम्प्रोवाइज द सर्विसेज, डेवलपमेंटल प्लान्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. देन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ की जो लोगों तक जानकारी पहुँचाना, and running homes for the destitute, refugees, disease affected persons, etc. Then de-addiction centers, rehabilitation centers, ये सारे बहुत सारे functions हैं जो NGOs के हैं. And जब आप एक NGO में practicum करते हैं या attach होते हैं, so सबसे पहले क्या है, understanding the NGO. Again and again I'm repeating, understanding the NGO, understanding the organization where you're working, its services, its beneficiaries उसके कौन हैं, एंड वेरियस जो NGO के वेरियस एस्पेक्ट हैं NGO के, वो क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि उस NGO का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोफाइल ऑफ द बेनिफिशरीज कि वो बेनिफिशरीज कौन है, उनका प्रोफाइल क्या है, देन हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो कब NGO स्टार्ट हुई, इनिशिएशन उसकी कब हुई, देन जोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्क. Any NGO which is formed has a designed or a specific listed geographical area of work. Supposing an NGO is working in Punjab, in Ludhiana district, so it will, और उसके पेपर वर्क में जब रजिस्ट्रेशन हुई थी उसमें लिखा हुआ है कि that the area of work, geographical area of work is Ludhiana district, so that NGO cannot work outside Ludhiana. So जो उसके जो दायरा है काम करने का, geographical area of work is just Ludhiana district. Then is it registered under which act? You have to know when you are doing your practicum that where is it registered, under which act is it registered. Then उसका organizational structure क्या है. Organizational structure means the hierarchical pattern, जो उसमें जो people who are running the organization, who are the people. So always remember, you are not supposed to write the names, only the designations. So you should know designation wise who stands where. So that is very important. Then sources of funding, whether the NGO is getting foreign funding, Indian funding. Then एक clause आपको पता होगा कि जब एक NGO register होती है तो उसको वो 3 years तक काम करती है. So it is mandatory कि वो 3 साल तक काम करे on their own funds, on their own जो ways and methods and means जिस तरह से वो अपनी NGO को चला सकते हैं. उसके बाद 3 years के बाद the government allows you to take funds, but that also has to be through proper channel, and information about it has to be all documented, that कहाँ से funds लिए, उसका audit होता है, everything is in black and white. So then people support in the form of contributing of funds, लोग भी support करते हैं in the form of contributions. Then recognition and awards, अगर उस NGO के कोई recognitions हैं, कोई awards हैं, आगे के future plans क्या हैं. So you should when you are doing your practicum, you should try to understand all this. Then problems of the agency within and outside the organization. What are the problems? उस organization में क्या problems हैं अंदर और उसके बाहर. सो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप एक NGO में या एक ऑर्गेनाइजेशन में 45 डेज़ के लिए अटैच होते हो तो यू शुड नो द इन एंड आउट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. देन द क्लाइंट एंड NGO रिलेशनशिप कि जो क्लाइंट्स आते हैं और उनका रिलेशनशिप क्या है. एंड देन जो आइडियोलॉजी ऑफ NGO है, एंड आइडियोलॉजी और एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई गैप है कि नहीं है. वो NGO might say कि मैं our mission is like this, our focus is like this, our motto is like this, but क्या वो उस पर चल रहे हैं?
एज अ सोशल वर्कर यू हैव टू लिस्ट आउट दैट, यू हैव टू फाइंड आउट कि उसमें जो प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस है, उसमें कोई गैप है. देन जो अगर कोई एनजीओ कोई प्रोजेक्ट लेती है, आप उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो व्हाट इज़ द रैशनल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, कि उसके पीछे व्हाट इज़ द रैशनल, उसका क्या कारण है कि ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है. देन द टारगेट्स सेट एंड अचीव्ड, कि क्या टारगेट हमने सेट किया था और क्या अचीव हुआ है. ये टाइम टू टाइम, ये नहीं कि एंड में देखेंगे कि हमने स्टार्ट किया और एंड तक देखेंगे कि क्या अचीवमेंट हुई है. फ्रॉम टाइम टू टाइम, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपने ये देखना है कि आपने किस किस तरह से क्या क्या अचीवमेंट की है, क्या आपको प्रॉब्लम्स आई हैं. देन फैक्टर्स दैट हैव बियरिंग टू अटेनिंग द टारगेट्स, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टारगेट अचीव करने के लिए, टारगेट तक पहुंचने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. देन जो एजेंसी है उनका क्या व्यू है बेनिफिशरीज को लेके. देन रिलेशनशिप बिटवीन द बेनिफिशरीज एंड between the agency and the beneficiaries, कि agency और beneficiaries के अंदर क्या relationship है, and relationship between the agency and the community, और community के साथ भी क्या relationship है, this is very important. Then you have to know कि कितने projects वो organization उस time पे कर रही है, वो NGO उस time पे कितने projects implement हुए हैं. देन इंटेंडेड टास्क एंड टाइम फ्रेम फॉर द सेम, कि कितना टास्क सेट किया हुआ है और कितना टाइम फ्रेम है जो दिया हुआ है जिसमें आपने सब कुछ ख़त्म करना है. देन द वेज एंड मीन्स हाउ द प्रोजेक्ट इज़ मॉनिटर्ड, कि उस प्रोजेक्ट को किस तरह से मॉनिटर किया जाता है, कौन से वेज एंड मीन्स अप्लाई किए जाते हैं. देन you have to see to it that जो indicators, what are the indicators for evaluation. जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे आप NGO में काम कर रहे हैं, the NGO also evaluates the student of social work, and the social work student should also see to it that he should also evaluate himself from time to time. I always tell my students that after every 5 visits, try to see, try to conclude, try to summarize what you have learned, what is your learning process, what are the gaps, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या आपने अचीव किया, आपकी क्या स्ट्रेंथ थी, आपने किस तरह से उनको यूटिलाइज किया. स्टूडेंट्स राइट ऑब्जर्वेशन डन ऑफ व्हाट, द क्लाइंट वाज एक्सेप्टेड हाउ, किस तरह से, क्लाइंट किस तरह का था. देन कम्युनिकेशन वेरी गुड. कम्युनिकेशन वेरी गुड का क्या मतलब है, किस तरह से आपने कम्युनिकेट किया, आपने एक्सप्रेस करना है कि द क्लाइंट बिलोंग टू दिस कल्चर, सो आई कीपिंग ऑल गिविंग ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज कल्चर. A rapport was built, and as the principle of acceptance says, the social worker did not have any kind of preconceived ideas or did not think of non-judgmental attitude, or and tried to accept the client the way he or she was, so that the client is applying a professional approach, and will be helping the respondent or the client to achieve and be normal and work towards individual development. So basically you have to explain the ifs, the hows and the buts of everything, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है. Skills यूज़ किए, communication skill, active listening was used. How was it used? So everybody knows active listening is there, but किसको सुना आपने, कैसे सुना, कि क्या कितनी देर बैठ के सुना, पेशेंस उसमें आपकी क्या वो थी, आपको क्या लगा, किस तरह का केस था. So you have to explain each skill, you have to explain each method, you have to explain each technique. This is going at the grassroots level. This means that working in depth and doing things. Then the student also has to go beyond the obvious information. The student has not to just see कि जो सामने आंखों में दिख रहा है वही उसको करना है. You have to go beyond, you have to think beyond कि इसके पीछे क्या है, and जो documentation है वो किस तरह से करनी है, information collect करनी है. और NGO के जो लोग हैं
जो एनजीओ के लोग हैं, जो एनजीओ के लोग हैं जहाँ पे आप अटैच हो रहे हैं, और उस एनजीओ का वैल्यू सिस्टम क्या है, देन उसका डज इट एडहेयर टू द आइडियोलॉजी एंड वांट्स दैट स्टेटस क्यो शुड बी मेंटेन, और इज़ इट रेडी टू प्रमोट चेंजेस, और डज इट एम्पावर इट्स क्लाइंट्स को एम्पावर करते हैं, या और उनके लॉन्ग टर्म बेसिस या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं, कि सिर्फ अभी के लिए जो है उस इंसान को हेल्प कर दिया और उसके बाद there is no this thing there is no asking the individual, or there is no finding out, there is no follow up. So this is very important. Then do values of freedom, justice, dignity, democracy and liberty guide the functioning of the organization. You have to see to it कि ये सारे जो हैं are these there. Then it is often unrealistic to expect an organization to follow these values, that situation in these kind of situations, but it is up to you to see that what is the whether the deviations are for too much, they are going too away from what is the value and norms and this thing. Because sometimes so what happens is you have to see the situation and change a little bit, but change a little bit does not mean that you you don't follow the principles, you leave all values. Sometimes instead of going on the set path, you have to bring about a little change in order to undertake the task. So that's okay, but you should see to it that you are not deviating from the actual system, you're not deviating from the actual value, which is which is of utmost importance. Then when you undertake work, you have to see to it that you understand when you are dealing with the client, how do you understand the client system, the system of the client. You have to see the socio-economic, you have to understand the socio-economic profile of the client. Then what are the actions to be taken to solve the problem. Then the cultural and psychological problems that contribute to his problem, this is very important. Then what are the factors which are causing the problem. Then is there any kind of outside help which is being rendered to solve the problem, and उसकी limitations क्या हैं. Then आपकी limitations क्या हैं उसकी problem solve करने के लिए. Then अगर आप as a social worker you are practicing the methods of social case work, social group work, community organization, तो आपने ये देखना है कि जो कम्युनिटी है, जो नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ यूजिंग दीज फ्रॉम टाइम टू टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि आपको केस वर्क पता ही नहीं कि केस वर्क करना क्या है. आपको सबसे पहले जब आप केस वर्क स्टार्ट करते हैं, in your journal, in your social work practicum, you have to undertake cases in first year as well as in second year. So you have to the agency or the organization will give you cases, or even if you take independent cases, it has to be authenticated from somewhere, from someone, that yes, this is the casework which you have done. And make sure when you are doing the casework, आप सारे नॉर्म्स फॉलो करिए कि केस वर्क में क्या स्टेजेस हैं, क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, क्या स्किल यूज़ किया, कितने सेशंस लिए, देन किस तरह से टर्मिनेट किया, रैपो बिल्डिंग क्या था, कम्युनिकेशन क्या था, और उसके बाद जब टर्मिनेट किया और फिर उसको केस को इवेलुएट किए, इवेलुएशन एंड फॉलो अप. So casework में these are the things which are very very important. Then comes group work. When you have group work sessions, students get confused between group work and group conference. Group work is totally different. Group work क्या है? Group work is something which you take a group of people. It could be rickshaw pullers, it could be some elderly in a park, it could be some स्टूडेंट्स, अडोलेसेंट बॉयज़ और अडोलेसेंट गर्ल्स इन अ स्कूल. तो आप उनका ग्रुप वर्क सेशन लेंगे, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे और उनके साथ आप कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे. एंड द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ टू सेंसिटाइज देम, टू मेक देम अवेयर, to acquaint them with some problems, and to bring them out, to help them deal with it. So in the first year आपको बेसिक ग्रुप वर्क करना है, जिसमें आप एक ग्रुप लेते हैं, ग्रुप के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं, देन यू असेस द ग्रुप कि कैसे एक्टिविटी हुई, देन यू टेक अ लिटिल फीडबैक फ्रॉम देम. सो इट इज़ बेसिकली ट्राइंग टू मेक यू
understand or giving you an orientation about group work, and you take different group works. आप एक एक घंटे का या दो घंटे के ग्रुप सेशंस ले सकते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रीच आउट कर सकते हैं. द टॉपिक कुड बी सेम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कम्युनिटी, बट द ग्रुप हैज़ टू बी डिफरेंट. अब डिफरेंट जो ग्रुप वर्क है उसका बेसिक फोकस क्या है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव या फोकस ये है कि रीचिंग आउट टू अ लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. व्हेन केस वर्क स्टार्टेड, केस वर्क का ये था कि हेल्पिंग वन इंडिविजुअल एट वन टाइम. सो ये देखा गया कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हम एक इंसान के ऊपर इतना टाइम स्पेंड करके उसके पूरे दायरे में काम कर रहे हैं. देन इवॉल्व ग्रुप वर्क, जिसमें ये था कि व्हाई नॉट हेल्प अ लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अ लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल इन दैट पर्टिकुलर टाइम. एंड कम टाइम में आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं. देन उसके बाद जो थर्ड आया वो था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें यू वर्क विद द होल कम्युनिटी. एंड व्हेन आई वाज टेकिंग द सेशन और क्लासेस ऑन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, I was telling and mentioning again and again and that in community organization and development, people's participation is of the utmost importance. कि people's participation जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आपने ये देखना है कि आप जब कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं. अगर लोग ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हैंडफुल ऑफ पीपल, थोड़े से लोग आके पार्टिसिपेट करें, देन इट्स ऑफ नो यूज़. सो कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना और डेवलप करना इज़ अ complete task. So in your journal also, in your social work practicum as a subject also, you do case work, you do group work, and then you do community organization and development, which is a part of your second year, जिसमें आप एक बैच बनाते हैं अपना, स्टूडेंट्स का एक बैच बनाते हैं SWS का. और वो बैच में आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक अंडर डेवलप्ड कम्युनिटी को अडॉप्ट करते हैं. उस अंडर डेवलप्ड कम्युनिटी को अडॉप्ट करने के लिए जो अगर 10 या 15 स्टूडेंट्स हैं एक बैच में, तो उस बैच को आप सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. जब आप सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उन सब ग्रुप्स के अंदर आप डिफरेंट हेड्स लेके, एजुकेशन एक है, हेल्थ एक है, ऑक्यूपेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक है, देन सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स हो गई या मिसलेनियस हो गया वो अलग है. सो डिफरेंट ग्रुप्स बना के आप डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं, इसमें जो फील्ड वर्क सुपरवाइजर है, ही जस्ट टेल्स द स्टूडेंट्स दैट येस यू हैव टू ऑल्सो अंडरटेक अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन योर सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स. एंड जो कम्युनिटी आइडेंटिफाई करना, देन ग्रुप्स बनाना, सब ग्रुप्स बनाना, दिस इज़ ऑल एट द स्टूडेंट्स लेवल. येस, अगर स्टूडेंट्स कोई कम्युनिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो येस द फील्ड वर्क सुपरवाइजर और द कोर्स कोऑर्डिनेटर कैन हेल्प देम विद दैट, कि दैट दिस इज़ द कम्युनिटी, and the course coordinator can also give them this much freedom that that the community or the organization should suit everybody. At least for myself, I am saying that I always make sure that the students who are working in community organization and development, when the whole batch is there, if it is not suiting many of them, so we try to change and we try to reach one consensus कि वो सबको सूट करना चाहिए. तो उससे क्या है, काम अच्छा होता है. उसके बाद हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. सब ग्रुप्स में वो डिफरेंट हेड्स लेते हैं, वो उनकी इंडिपेंडेंस है, वो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, किस में वो काम करना चाहते हैं. जब आप सब ग्रुप्स ले लेते हैं तो सब ग्रुप से क्या है, एक टीम वर्क हो जाता है कि डिफरेंट जो टीम्स हैं, 2 की टीम है, 3 की टीम है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बैच हु इज़ डूइंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. तो उससे आप डिफरेंट एरियाज़ में काम करेंगे और उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके देन लास्ट डे पे देर इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ प्लान विच इज़ कॉल्ड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इन विच यू कॉल द पर्सन इन चार्ज ऑफ दैट प्लेस सो दैट ही नोज ही इज़ उसकी नॉलेज में लाया जाता है कि येस आपके एरिया में स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू सोशल वर्क के उन्होंने इतने 15 दिन से 16 दिन से काम कर रहे हैं और आज लास्ट डे वो उसको सम अप कर रहे हैं और वो उसका एक प्रोग्राम या डेवलपमेंटल प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड उस दिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्स कोऑर्डिनेटर टू बी देयर. एंड इफ़ द कोर्स कोऑर्डिनेटर इज़ नॉट देयर, देन जो भी आपका फील्ड वर्क सुपरवाइजर है, ही और शी शुड बी देयर for your activity which is community organization and developmental activity, जो आप last day of community organization and development में plan करते हैं.
सो दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना आप अपना सेकेंड ईयर का जर्नल सबमिट नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक प्रैक्टिकली जो अपने ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटी में काम करना है, उसके लिए जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको आप कम्युनिटी में अप्लाई करते हैं. देन यू ऑल्सो हैव ग्रुप वर्क सेशंस वे यू हैव 2 ग्रुप वर्क सेशंस जो आपने करने हैं, और उसमें आपने एक ग्रुप को 6 सेशंस लेने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी फेज टू द समिंग अप फेज टू द इवेल्युएशन फेज जो लास्ट 6 है. तो आपके जो 12 सेशंस है उसमें आप 2 ग्रुप्स लेंगे, और 2 ग्रुप्स में आप 6 सेशंस के जो वो एक ग्रुप के 6 सेशंस लेंगे और सेकंड ग्रुप के भी 6 सेशंस लेंगे. सेम वे केस वर्क में भी आपने 2 केसेस लेने हैं, एंड उनको आपने 6 सेशंस में डिवाइड करके काम करना है. एंड देन कम्स सोशल एक्शन. सोशल एक्शन क्या है? सोशल एक्शन इज बेसिकली taking action on some underlying problem which has been there for a long time, and the fieldwork supervisor just gives an information or just guides और shows direction to the people, और वो action खुद लेते हैं अपनी problem का. And social action, जो students when they do their social action activity, it is to be authenticated, it is to be certified by somebody. जो कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी, पहले आपने ये शो करना है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली थी, उसके बाद यू एंड यू अलोन और एज अ ग्रुप हैव ट्राइड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और उसकी सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं से होनी चाहिए कि आपने ये प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व किया है. और सोशल एक्शन तभी कंप्लीट होता है जब वो प्रॉब्लम पूरी कंप्लीट होकर सॉल्व हो चुकी है. सो समबडी जस्ट स्टार्ट्स एन एक्टिविटी एंड सेज कि मैंने ये इनिशिएट कर दिया, और उसके बाद पता नहीं वो हुआ नहीं हुआ. तो सोशल एक्शन मीन्स कि जब वो कंप्लीट हुआ, देन यू विल से कि सोशल एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड कंडक्टेड. So this is very important. Then we come to individual conferences. What is individual conference? Individual conference का मतलब है एक इंडिविजुअल जो आपका स्टूडेंट है, जो सोशल वर्क स्टूडेंट है, उसके साथ जो फील्ड वर्क सुपरवाइजर है, he or she has to have different sessions. You have to have at least 8 individual conferences in the first year, which is very important. एंड 8 में से एटलीस्ट अगर आप टेलीफोनिकली भी 1-2 करते हैं तो टेलीफोनिकली 1-2 या 3-4 ऑल्सो यू डू. 50% ऑफ देम हैव टू बी फिजिकली मीटिंग योर फील्ड वर्क सुपरवाइजर एंड लर्निंग फ्रॉम द सुपरवाइजरी फीडबैक, सो दैट यू नो कि आपने किस तरह से चलना है. ऐसे तो कोई भी अगर आप सुपरवाइजर के अंडर काम नहीं करेंगे, आपका कोई सुपरवाइजर नहीं है, ऐसे तो कोई भी कहीं पे भी एग्जाम्स दे के पास हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं आएगी ना. सो सुपरवाइजर के साथ अटैच होना, सुपरवाइजर से सीखना, सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम यू गो एंड मीट द सुपरवाइजर. यू कैन डिस्कस टेलीफोनिकली, यू कैन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे आपको जो भी आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, आप उससे कम्युनिकेट करके अपने सुपरवाइजर से सीख सकते हैं. And then you also have to have stamping on your journals. जब आपका जर्नल कंप्लीट होता है, लीविंग द ओरिएंटेशन विजिट पार्ट, आपने अपने जर्नल्स पे स्टैम्प लगानी है. जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अटैच हैं तो आपने उसमें स्टैम्प लगवानी है आफ्टर लीविंग फ्यू पेजेस कि येस इट इज़ स्टैम्प्ड एंड साइंड दैट दिस स्टूडेंट हैज़ बीन वर्किंग, सो दैट आपका जर्नल पे जो आपने लिखा है वहाँ पे भी वो उसको ऑथेंटिकेट करें कि येस द स्टूडेंट वाज वर्किंग हियर. बिकॉज and also sometimes it so happens that the organization says, most of the time they say कि give us a summary of your work, of the work record you have done. तो जो आपने काम किया है उसकी आप एक समरी बना के उस ऑर्गेनाइजेशन की अगर डिमांड है जहाँ आपने इतना कुछ सीखा है, जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको अटैच किया है, तो इट इज़ योर ड्यूटी if they have a rule that you have to give the summary or gist of the work done and give a presentation. अगर आपको presentation भी बनाने को और प्रेजेंट करने को बोलते हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो ये दोनों एक्टिविटी करेंगे. सो दैट उससे क्या होगा कि उससे आपकी भी एक एफिशिएंसी आप में आएगी टू प्रेजेंट. यू विल गेन कॉन्फिडेंस एंड इट विल हेल्प द एजेंसी टू रिमेंबर दैट येस दिस स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क डिड दिस वर्क, और उसने ये प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें किस तरह से कितने लोगों ने अटेंड की, क्या गैप्स थे, कहाँ काम किया, कितने ड्यूरेशन में किया. सो इट हेल्प्स both the agency and the social work student. So always see that अगर presentation का उनका rule है, and if you are asked to give a presentation, make sure that you give a presentation. It's very important.
So we've covered the different aspects of fieldwork journal, social work practicum, कि आपने किस तरह से ओरिएंटेशन विजिट्स करनी है, कंकरेंट करनी है, जर्नल में डूज एंड डोंट्स, हाउ टू राइट द जर्नल, हाउ टू अप्लाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स of theoretical part in the practicum, how to work at the grassroots level, how to overcome your limitations, then what are the practical approaches to working in the field, then working in an NGO, then what is individual conference, what are group conferences, what is a group work. Sorry, I have not explained what is a group conference. Group conference क्या है? I had told you group work and group conferences are different. So group conference क्या है? Group conference is basically students of social work when they are attached to an organization, जब वो एक organization में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो BSW के हैं, चाहे वो MSW के हैं, आप कोई भी 4 या 5 का बैच बना के आप ग्रुप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. समटाइम्स इट सो हैपन्स कि 3 ही लोग होते हैं एक बैच में और कोई मिल ही नहीं रहा है. सो बहुत अगर इमरजेंसी है, बहुत अगर मुश्किल है, आपको कोई मिल नहीं रहा, ओनली इन दोज कंडीशंस कैन ग्रुप ऑफ 3 बी अलाउड. अदरवाइज जो आप ग्रुप कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेक श्योर देयर इज अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल. सो आप अपना, जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया कि बहुत प्रॉब्लम आ गई तो 3 कर सकते हैं, तो आप 3 नहीं सुनेंगे, आप 4 एंड अबव सुनेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 एंड अबव का जो ग्रुप होता है उससे एक हेल्दी इंटरेक्शन होता है, उससे जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी होती है. बिकॉज व्हेन जो ग्रुप कॉन्फ्रेंस का पर्पस है, ग्रुप कॉन्फ्रेंस का बेसिक पर्पस ये है कि यू इंटरेक्ट whoever is working in whichever organization, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो सारे 4 या 5 बार मिलते हैं और उसके बाद पहले इंट्रोडक्टरी सेशन होता है. देन ईच वन टेल्स अबाउट कि वो कहाँ पे अटैच है, कौन से नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या टाइमिंग है, किस तरह से काम करते हैं, सब कुछ, और क्या मुश्किलें आ रही हैं. सो जब आप डिफरेंट मीटिंग्स में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो उससे क्या होता है कि यू लर्न फ्रॉम ईच अदर, यू ग्रो विद ईच अदर एंड यू ग्रो बाय लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. सो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ग्रुप कॉन्फ्रेंस इज़ अ हेल्दी इंटरेक्शन, बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं कि सोशल वर्क इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड का मतलब मिलजुल के काम करना, और सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में जब कर रहे हैं तो हम एज सोशल वर्कर्स वी फॉलो एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. तो अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करेंगे, अगर आप ग्रुप कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप एक दूसरे से सीखेंगे, आप अपनी ईगो छोड़ के अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे जो फेलो सोशल वर्कर्स हैं उनसे मुझे सीखने में कोई हार्म नहीं है. आप अपनी सजेशंस देंगे उनको कि मुझे ये लगता है कि आपकी जो आपका फील्ड वर्क आप जो कर रहे हैं उसमें ये गैप है. सो एक दूसरे से सीखने से आपकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपके अंदर एक नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन की भावना आती है, जिससे ये है कि आप जब अपना सोशल वर्क कंप्लीट करेंगे डिग्री, तो उससे क्या है कि आपको कोलैबोरेट करना आएगा कि दूसरे के साथ कैसे करना है, दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स कैसे शेयर करनी है. अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप किस तरह से फीडबैक ले सकते हैं, किस तरह से हेल्प ले सकते हैं. लेकिन यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड. अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरे से अच्छा कोई सोशल वर्क स्टूडेंट या सोशल वर्कर है ही नहीं, तो मैं किसी से क्यों पूछूं, यू विल नेवर ग्रो. You will never come out of your negativity, you will never come out of your thoughts कि नहीं मैं किसी से सीख सकता हूँ या मैं किसी को सिखा सकता हूँ. हमेशा याद रखना, नॉलेज जो है इट शुड बी शेयर्ड. इट शुड नॉट बी कि मैं अपने शेल में रख के अपने अंदर ही कि मैं क्यों किसी को बताऊँ, वो मेरे से आगे ना निकल जाए या वो अच्छा सोशल वर्कर ना बन जाए. अगर आप ये पीछे छोड़ देंगे सब मैं, because I always tell the students, nowhere will you write I did this, I did that. The social work student, जब आप एक इस प्रोफेशन में आ गए तो I, me, we ये सब ख़त्म है. इट इज़ ओनली सोशल वर्क स्टूडेंट. क्योंकि एक सोशल वर्क स्टूडेंट के नाते से, एक सोशल वर्क स्टूडेंट के ज़रिए से आप सोसाइटी तक पहुंच रहे हैं, सोसाइटी में काम कर रहे हैं. तो हमेशा ध्यान रखिए कि दिल से काम करिए, दिल से हर चीज़ को समझिए. और कहीं पे भी अगर आपको कोई सिखा रहा है, अगर आपको कोई न्यू आइडियाज़ दे रहा है, बी ओपन टू इट. अगर आप ओपन रहेंगे तो आप
बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलेंगे, नहीं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशंस होंगी, आप हमेशा डीमोटिवेटेड रहेंगे। सो आई विल ऑलवेज से कि सोशल वर्क प्रैक्टिकम जो सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से समझिए। अपना जो जर्नल है पेज 9 टू पेज 26 को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपने फील्ड वर्क सुपरवाइज़र से डिस्कस कीजिए। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, कई बारी फील्ड वर्क सुपरवाइजर्स जो हैं उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर उन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया या अगर आपका कोई जर्नल चेक नहीं करके दिया इन 1 or 2 days या लिमिटेड टाइम में, आप सोचोगे कि अभी दिया तो थोड़ी देर में ही हो जाएगा। सो प्लीज़ हैव पेशेंस। तो एवरीबडी इज़ बिज़ी। सिर्फ आप एक स्टूडेंट नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनका जो तालमेल चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनका काम चल रहा है। सो बी पेशेंट एंड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लिस्ट आउट कीजिए, सो दैट यू आर देयर, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रह ना जाए एंड द सुपरवाइज़र कैन हेल्प यू टू द मैक्सिमम। सो वो आपको जितनी कैपेसिटी उसके अंदर है, जितना वो सिखा सकता है उसको वो आपको हेल्प करे। तो आप लिस्ट आउट करते रहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आई, मुझे ये समझ नहीं आया। तो उससे क्या है, एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा। So I would just like to end up here. I would just like to sum up here that social work is a very beautiful subject, and by doing this, by learning from the theory and applying it in practicum, you can reach the very high heights and you can do wonders. And आप मतलब कहीं ऐसा नहीं, there is no stopping you. So but you should have that passion and drive and motivation to work. So this is very very important, and I hope you enjoyed this session. I hope you noted down the do's and don'ts, and I hope you understand that what I was trying to say. You have listed out that yes, this is expected out of social work student in his practicum, in his concurrent, in his orientation, and give it your best, and all the best. Thank you so much.